যারা দিনে 100 টাকা 100 দিনের কাজের যে মজুরি তার থেকে বেশি টাকা বিউটি পার্লারে খরচ করে, সেরকম কিছু মেয়েদেরকেও ছবি দেখলাম আমরা। ওদের একটা ড্রামাবাজি চললো। এবং মাননীয় মন্ত্রী আগেও আপনাদেরকে বলেছেন, উনি যতবার বলেছেন যে তৃণমূলের সাংসদদেরকে আপনারা আসুন আমার সাথে কথা বলুন, কিন্তু তৃণমূলের সাংসদরা কথা বলতে রাজি হননি। আজকে এই পরিস্থিতি কেন হয়েছে, এর যদি মূলে যাই আমরা, যে 100 দিনের কাজে এমজি এনার্জি এর কাজে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই দুর্নীতিটা হতো না যদি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কথা মতো প্রতি জেলাতে দিশার মিটিং ডাকত। দিশার মিটিং এই বিষয়গুলো আলোচনা করার জায়গা ছিল। সেখানে যেহেতু এমপিরা থাকতেন, এমপি সভাপতি দিশার মিটিং এর, স্বাভাবিকভাবে বিজেপির যেহেতু 18 জন এমপি জিতেছিল, রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই চায়নি যে দিশার মিটিং হোক। আর যদি এই দিশার মিটিং হতো তাহলে পরে কিন্তু আজকে এই ঘটনা ঘটতো না। সমস্ত কিছু কিন্তু ওখানেই আলোচনা করে সেখানেই আটকে দেওয়া যেত। আজকে মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কয়েকটা জেলা ঘুরে ঘুরে 4 কোটি টাকার উদ্ধার করার কথা বলে গেছিল টিম। 4 কোটি টাকা মুখের কথা না, জনগণের ট্যাক্সের টাকা। সেই টাকা উদ্ধার না করে, ফেরত না দিয়ে, কোনো এফআইআর না করে ড্রামাবাজি চলছে। আজকে রাজভবন এবং হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকা, যে এলাকায় 144 ধারা জারি থাকে, আমরা এই প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাই রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে যে 144 ধারার মধ্যে কিভাবে অভিষেক ব্যানার্জি অবস্থান বিক্ষোভ করছেন 144 ধারা ভেঙে? পুলিশ কি তাকে রিটেন পারমিশন দিয়েছে? যদি দিয়ে থাকে সেই পারমিশনের কপি দিতে বলুন। কোন অধিকারে দিয়েছে রাজ্যের ডিজি পুলিশ? দ্বিতীয় কথা, যদি উনি আইন ভেঙে করে থাকেন, অর্থাৎ রাজ্য পুলিশ পারমিশন দেয়নি 144 ধারা ভেঙে সেখানে সভা করার, তারপরে যদি উনি করে থাকেন, তাহলে ওনার বিরুদ্ধে জিডি হওয়া উচিত, জেনারেল ডায়েরি হওয়া উচিত কমসে কম। তো জেনারেল ডায়েরি কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হয়েছে? বা ওই মঞ্চে যারা ছিলেন তার স্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের বিরুদ্ধে হয়েছে কি? সেই প্রশ্নের উত্তর রাজ্য পুলিশকে দিতে হবে। যদি না দেয়, তাহলে আগামী দিনে ডিএ প্রার্থীরা যদি গিয়ে ওখানে অবস্থান বিক্ষোভ করে, তাহলে রাজ্য পুলিশ কিন্তু তাদের বাধা দিতে পারবে না। যদি বিজেপি মনে করে যে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব, আমাদের বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্যরা, আমাদের সাংসদ বিধায়ক, তারা যদি রাজভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে যে কামদুনির বিচার কেন হলো না, এই পুলিশ কিন্তু তখন 144 ধারার কথা কিন্তু বলতে পারবে না। আমরা জানতে চাই যে সেক্টোরিয়াল ল কি পশ্চিমবঙ্গে করা হচ্ছে নাকি, যে সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীর জন্য 144 ধারা থাকবে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য 144 ধারা থাকবে না? এর উত্তর রাজ্য পুলিশকে দিতে হবে। এবার আমি মাইক আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী নিরঞ্জনা জ্যোতিজির হাতে তুলে দেব। উনি আপনাদের সামনে বিস্তৃতভাবে কেন্দ্র সরকারের যে পয়েন্ট, কেন্দ্র সরকারের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। ধন্যবাদ। सबसे पहले मैं महिषासुर मर्दिनी मां काली को प्रणाम करती हूँ और आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कलकत्ता की इस पावन धरा पर जहाँ मां भागीरथी आकर के समुद्र में अपने आप को समर्पित किया, ऐसे पावन पवित्र भूमि में नेता प्रतिपक्ष और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के बीच में, मैं आपके बीच में मजबूरी में मुझे आना पड़ा। 2 दिन पहले टीएमसी के नेताओं ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। विषय पूछा गया कि किस विषय को लेकर मिलना है। उन्होंने कहा मनरेगा को मिलना है और केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने कहा आइए, मैं सिर्फ दिल्ली टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से ही मिलने के लिए गई थी। मेरे पास बहुत काम था, काम छोड़ करके गई थी। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे।
उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। मनरेगा में जो गड़बड़ियां हुई हैं हम अपने तथ्य रखेंगे। 15 मिनट के बाद वापस मेरी पीएस अनुरमा जी और मेरे एडिशनल पीएस सौरव जी लगातार संपर्क में थे। एडिशनल पीएस के हमारी पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहां गड़बड़ियां की है उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया है उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तत्काल अपने ऑफिस में व्यवस्था करवाई कि सारे सांसद आ रहे हैं। फिर उसके बाद महुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती हैं मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद डोलो गई, उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी, आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे, मैं 6 बजे पहुंच गई थी, 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। अब मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगी तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गई। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है, 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। क्यों? जब ये टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कम्युनिस्टों के गुंडे जेल में होंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था कि मायावती ने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी गोली गुंडों की छातियों में होगी, लेकिन उल्टा हो गया था। चढ़गुंडों की छाती पर गोली मारो, छाती पर यह नारा दिया था। लेकिन बसपा की सरकार आते ही गुंडे चढ़ गए हाथी में, गोली मारे छाती में। यही पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे टीएमसी के साथ आकर के आज पूरे प्रदेश में
ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई पुरुष सुरक्षित है। मैं आज तथ्यों के साथ मैं वहां भी बात करना चाहती थी और आज भी आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगी। यदि हमारा पक्षपात करने का इरादा होता, हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी जनता, यदि पक्षपात करने का तरीका होता तो आप 9 साल बनाम 9 साल का रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, जिस सरकार मनरेगा का विषय लेकर के जिस सरकार में ये साजिद थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और ये एक्ट 2005 में आया था, 4 में इनकी सरकार बनी, 5 से लेकर के 14 तक कितने साल होते हैं? 9 साल होते हैं। 9 सालों में यूपीए की गवर्नमेंट में 4,400 करोड़ के लिए दिया जाता है। मनरेगा में कितना दिया जा रहा है? 14,000 करोड़। 14,000 नहीं, आप कितना है? 14,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है मनरेगा में सिर्फ अकेले? अब आप देखिए 9 सालों में हमारी सरकार के समय 54,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। हम पक्षपात कहां कर रहे हैं भाई? यदि पक्षपात करना होता तो ये आंकड़े बताते हैं, आप इसको देखिए, कहां 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 और कहां 54,000, चौगुने का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें इन्होंने अपात्रों को दिया, शिकायत पर कार्रवाई हुई, पात्र वंचित है, उसमें भी आप देखिए यूपीए की सरकार में जो इंदिरा आवास चलते थे उसमें 4,400 करोड़ रुपया दिए गए 9 सालों में। कितना दिया गया? आप थोड़ा बोलते जाइए ना, आपको रिकॉर्ड याद रहेगा। 4,414। मोदी जी की सरकार ने कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री आवास में तिगुना चौगुना का अंतर हो गया ना, 6 गुना अंतर हो गया। अब आप देखिए, यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली कई जिलों में एक एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं। मैं क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आए, लेकिन उनको बात नहीं करनी। उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। दूसरा विषय, मुझे उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जी महिला है, इस पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम कर रही होंगी, लेकिन जब मैंने अपने मंत्रालय से पूरा विषय मंगवाया तो आप कल्पना करिए, वर्ष 2014 के पहले इस प्रदेश में आवास कितने बने थे, और आज मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद लगभग 45 लाख मकान हमने दिए हैं। यदि हमें पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमदर्दी नहीं होती और इनके यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय जो इंदिरा आवास थे, ये 45 लाख तो हमने मकान दिए। इंदिरा आवास 10,21,000 वो अपूर्ण घर हमने पूर्ण किए। यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम ये नहीं कर सकते थे। हम पश्चिम बंगाल की जनता के साथ छलावा नहीं करने देंगे। आज
কলকাতায় এসে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন সাধ্বী নিরঞ্জন। তিনি বলছেন যে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তারই পাশাপাশি তিনি বলছেন আবাসের জন্য 6 গুণ বেশি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র এবং তিনি বলছেন 2.5 ঘন্টা তিনি সেদিন অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃণমূল দেখা করতে চায়নি, তৃণমূল আলোচনা করতে চায় না, এমনটাই অভিযোগ করছেন। এবং তারই পাশাপাশি 100 দিনের কাজের পরিসংখ্যানও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলছেন বাংলায় 100 দিনের কাজে দুর্নীতি হচ্ছে। তবে তারই পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু এর আগেই বলে দিয়েছিলেন যে তৃণমূলের সঙ্গে দেখা না করলেও বাংলাতে এসে, পশ্চিমবঙ্গে এসে নিশ্চয়ই প্রেস কনফারেন্স করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং ঠিক সেই মতোই কিন্তু প্রেস কনফারেন্স করছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আমরা 3 তারিখ গেছিলাম কৃষি ভবনে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সাথে দেখা করতে। কুকুর বিড়ালের মতো চুলের মুঠি ধরে আমাদের ধাক্কা মেরে, ঘাড় ধাক্কা মেরে বার করে দেওয়া হয়েছিল বাংলার অধিকার নিয়ে আমরা কথা বলতে চেয়েছিলাম বলে। আপনি লিখে রাখুন, আগামীকাল হয় গিরিরাজ সিং নইলে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি এই বাংলায় আসবে শুধু একটা সাংবাদিক বৈঠক করার জন্য। এটাই বাংলার ক্ষমতা। ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। দুদিন আগে আমাদের সাথে দেখা করছিলেন না, আমাদের চুলের মুঠি, ঘাড়, কলার ধাক্কা দিয়ে সিআইএসএফ, দিল্লি পুলিশ লাগিয়ে বার করে দিয়েছে। আজকে ফ্লাইট নিয়ে বাংলায় আসতে হচ্ছে। এটাই বাংলার ক্ষমতা। আর কালকে যদি সাধ্বী আসে, গিরিরাজ বাবুকেও আসতে হবে, অমিত শাহকেও আসতে হবে, নরেন্দ্র মোদীকেও আসতে হবে।